Plains. Plains means the flat land, the flat area. You can see in this picture there are mountains. These are the mountain ranges. Okay, and with this there is a flat land. This flat land is known as plains. Okay, so this is the picture of plains. Plains means the flat land. Its height is less than mountains. These are low-lying flatlands. Okay. The slope of plain is gentle and its height is 100 to 200 meters above the sea level. These plains are formed by the sediments that are carried by rivers. The major plain areas or the basins are formed by rivers. Rivers carried sediments and silt with it and deposit it on the low-lying flat land. And it forms plains. Okay? So, how it forms? These are the plains of India. और आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि इसी तरह से फील्ड एरियाज होते हैं जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम. दीज आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, सो जब रिवर्स माउंटेन से फ्लो करती है, ओके, तो वो अपने साथ सैंड और सेडिमेंट्स लेकर आती है. सिल्ट, सैंड, सेडिमेंट्स यानी कि मिट्टी और स्मॉल जो रॉक पीसेस होते हैं वो अपने साथ लेकर आती है और फ्लैट एरिया में डिपॉजिट कर देती है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ प्लेन एरिया. ओके, सो these plains areas are formed by rivers. Clear? The major plains of the world are Great China Plain, Egyptian Plain, Plain of Iraq. These are the major or great plains. Again, I am speaking the names: China Plain, Egyptian Plain, and the Plain of Iraq. Okay, and in our country, there are the plain areas. These are called Gangetic Plains. Gangetic Plains are formed by the Ganga River and its tributaries. And there is Brahmaputra Plain. This is formed by river Brahmaputra. ओके, तो गंगा प्लेन्स वहाँ बनते हैं जहाँ से गंगा फ्लो कर रही है, गंगा वहाँ से मूव कर रही है. तो इस एरिया में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज सैंड, सिल्ट, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं. ओके, और असम साइड में इन दिस एरिया जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपने सैंड, सिल्ट, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जो एक हार्ड वर्क के बाद ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं. ओके, सो दिस ग्रीन एरिया, दिस वन एंड दिस, these are the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. ओके, and Punjab and Haryana are formed by the river Satluj. सतलुज रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर पंजाब हरियाणा का प्लेन्स फॉर्म हुआ है. सो दीज आर द प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है.
प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. डेंसली मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है प्लेन्स में, बिकॉज इट हैज़ all the facilities like transportation or एग्रीकल्चर वर्क. ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं प्लेन एरिया में. वाटर सप्लाई इजीली होती है. ठीक है. सो दीज आर द रीजंस दैट प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. प्लेन्स में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. It has fertile soil and fertile soil helps in the production of crops. Okay, abundant supply of water. चाहे rivers mountain से form होती हैं but still they run on the plain area. plain area पे move करती हैं और यहाँ पर water supply easy है. abundant water supply है, बिना रुके water supply होती है. Okay, so the climate of plains, the fertile soil and the flat land helps people to live in that place easily. So this is the main reason that plains are densely populated. Okay, clear? So this is about plains. Again, plains are the low-lying flat land. Its slope is gentle and average height is 100 to 200 meter. Okay, or most of the plains have been formed by rivers. These rivers carried sand, silt, sediments and deposit them at low-lying areas to form प्लेन्स. ठीक है. ये अपने साथ सैंड, सिल्ट, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उसको फ्लैट लैंड पे डिपॉजिट करती जाती हैं. क्लियर? एंड बाय दिस वे दे फॉर्म्ड द प्लेन एरियाज. इन इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम. नॉर्दर्न एरिया जो है वो गंगा रिवर सिस्टम ने बनाया है. नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है. ओके, एंड मेन इम्पॉर्टेंट प्लेन्स आर ग्रेट चाइना प्लेन, इजिप्टियन प्लेन एंड द प्लेन ऑफ इराक. क्लियर? नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. Atmosphere, as we have discussed before, the sphere of air. Okay, atmosphere means the sphere of air. Atmosphere is the vast expanse of air surrounding the earth on all sides. अर्थ की चारों तरफ जो एयर का एक वास्ट एक्सपेंस है, एक पूरा कवर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, इट इज हेल्ड विद द अर्थ. इट मीन्स इट सराउंडेड द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो इट अट्रैक्ट्स एटमॉस्फेयर ऑल्सो. एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद अर्थ. अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर क्यों है? ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड atmosphere has different gases. It includes different gases like nitrogen, hydrogen or oxygen, carbon dioxide, different type of gases it has. Okay, so let's discuss about it. 78% volume of gas in the atmosphere is nitrogen. The maximum part of atmosphere is nitrogen. It is of 78%. 78% हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन. ओके, एंड
21% oxygen, 21% oxygen. Clear? So let's add the 21 into 78. It is 99%. So where is 1%? 1% कहाँ रह गया अब? 78% तो नाइट्रोजन है, ओके, और ऑक्सीजन 21% है, तो फिर 1% कहाँ? 1% is the carbon dioxide and helium and other gases. Okay, so these other gases are formed the 1% of atmosphere. 78% nitrogen, 21% oxygen, and only 1% is other gases. Clear? Nitrogen and oxygen are very much important for the biosphere. बायोस्फीयर के लिए ये दोनों गैसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है. ओके, कैसे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हम कौन सी गैस को इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन को. और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. सो इट मीन्स ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए हमारी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ओके, एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो डिल्यूट करती है ऑक्सीजन को. डिल्यूट मीन्स पतला करना, थिन करना, कि जो थिक ऑक्सीजन है उस थिक ऑक्सीजन को ये डिल्यूट कर देती है, पतला कर देती है, और उससे बर्निंग नहीं होती. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर बर्निंग. आग लगाने के लिए, कुछ जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगी, बहुत थिक ऑक्सीजन होगी, तो क्या होगा? बर्निंग, कॉन्टिन्यूस बर्निंग. ठीक है, सब कुछ जलता रहेगा. तो नाइट्रोजन का फर्स्ट वर्क क्या है कि ये ऑक्सीजन को डिल्यूट कर देती है और प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग. जो कॉन्टिन्यूस बर्निंग है, जलना है, उसे रोक देती है. ओके, एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. अगर हमें फायर बर्न करनी है या कुछ और वर्क करना है, बर्निंग वर्क, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. एंड अगेन इट इज़ यूजफुल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ओके, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, and it is also very much important part of atmosphere. How it is important? Plants take carbon dioxide to make their food in the presence of light and water. सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड बनाते हैं. ठीक है, दे मेक फूड फॉर देयर ऑन. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स. वेरी गुड. इट कीप्स द अर्थ वार्म and it absorb the heat. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, that is called CO2 also. कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करती है. ओके, और हीट एब्जॉर्ब होने से हमारी अर्थ वार्म हो जाती है. सो इट कीप्स द अर्थ वार्म. ओके, द
The ozone layer in the atmosphere protect all form of life on the earth from the harmful radiation of the sun. Now there is another layer of air, that is ozone layer. Which layer? ओजोन लेयर. तो जो ये ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से सेव करते हैं. ओके. जो हार्मफुल रेज हैं सन की, उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ओजोन लेयर. ओके. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. क्लियर? And the other gases are argon, hydrogen and helium. These are the other gases. Our air also includes dust particles and water vapors. एयर में और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. वो क्या होती हैं? कौन सी थिंग्स हैं? वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. क्लियर? एंड these are found in varying quantities in the lower layer of atmosphere. एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं और उनमें सबसे लोअर लेयर पर हमें ये dust particles or water vapors we find in the lower section of the atmosphere. Okay. Although the atmosphere extends up to 1600 किलोमीटर, जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक ऊपर जा चुका है. The density of air near the earth's surface is highest. अर्थ के पास एयर सबसे ज़्यादा होगी. एंड एज वी गो हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी. एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस. स्पेस में कोई भी एयर नहीं होती है. तो अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक हमें एयर मिलती है. और जो सबसे ज़्यादा डेंस है एयर वो कहाँ पर है? नियर द अर्थ सरफेस. ठीक है. अर्थ के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, अर्थ के पास सबसे नीचे वाले पोर्शन में एटमॉस्फेयर के, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है. ओके. एज यू गो हायर द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज रैपिडली. जैसे जैसे हम अप साइड जाएंगे तो एयर की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ओके. तो एयर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है क्वांटिटी? नियर द अर्थ सरफेस. ओके. सो दिस इज अबाउट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज स्फीयर ऑफ एयर and it is the vast expanse of air surrounding the earth. Clear? I hope you have enjoyed that topic. बहुत interesting, बहुत अच्छा topic है. Keep it in mind. Learn it properly. Read it properly. Okay? So that's it for today. Thank you and have a nice day.